अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रिपरेशन ड्यूरिंग ग्रेजुएशन स्टार्ट कर रहे हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे सफलता ग्रेजुएशन से 6 महीने के अंदर मिल जाए। लेकिन आप ग्रेजुएशन के बाद ही सब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मुझे विद इन 6 मंथ मुझे सफलता मिल जाए। एपिसोड में वाईसीटी टॉक के 54th एपिसोड में, जहां पर हम बात करेंगे मिस्टर प्रज्ञान शुक्ला सर जी से, जिन्होंने अभी रिसेंटली यूपीएससी द्वारा आयोजित ओआरए जो कि स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट पर एग्जाम कराया जाता है, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उसको इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो आइए प्रज्ञान शुक्ला सर से मिलते हैं, इनके बारे में जानते हैं, इनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में जानते हैं। प्रज्ञान शुक्ला सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, बहुत अच्छा। ओके सर, सबसे पहले तो आप एक कंसाइजली अपना इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को दीजिए। आपने अपनी स्कूलिंग 10th और 12th ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया? Good afternoon, everyone. Myself Pragyan Shukla. I've been completed my high school and intermediate from my native place. Then after graduation from Gorakhpur University, after that LLB from Gorakhpur University, and then after I started preparation for the judicial service examination. I gone to Prayagraj and started preparing for the judicial service examination and any other exam with the minimum qualification is LLB. Okay, so your qualification is BA LLB, as you have told me right now. So sir, I just want to ask about the examination, that is the ORA examination conducted by UPSC. So our viewers or audience wants to know about that particular examination, that what kind of examination is this and what is the syllabus and pattern of this examination? This is a special examination and various special vacancies comes from the UPSC, and UPSC gives the advertisement with the name of Officer Recruitment Advertisement, ORA, that is for the various ministries of the central government and various department of central government. This is the vacancy for the trademark registry, comes under the DPIIT, which is a part of the Ministry of Commerce and Industries. And the post is the examiner of trademark and GI, for which the minimum qualification is LLB and 2 years experience as an advocate. Okay. And the examination is a single exam for 120 questions, each questions having 3 marks. One exam and then interview. So after the merit will be communicated after the exam and interview. And then the final merit will be decided and the selected candidates list will be decided. The examination syllabus of the examination is only law papers of the minor laws and major laws. Major laws means CRPC, evidence, IPC, constitutional law, and Indian Evidence Act, and jurisprudence, international law. Minor laws just like Trademarks Act, Copyright Act, Patent Act, Information Technology Act, and some other minor acts. Okay. And what is the pattern of the examination? Means you have told me that there are so many ministry under this examination. I exactly did not recall right now the name of that particular ministry, but department. But you have told me that every ministries or department has its own syllabus, So can you please tell me the examination pattern and the questions that will come in the examination? That is depend on the department, or the same questions are coming single examination? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि वेरियस एग्जाम्स के लिए, वेरियस पोस्ट के लिए एक एग्जाम कराया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक पोस्ट है दिल्ली APP, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन दिल्ली। एक पोस्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर CBI, एक पोस्ट है आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंपनी प्रोसिक्यूटर। तो इन तीनों के लिए कभी कभी वैकेंसी निकलती है और एक ही साथ इन तीनों के लिए वैकेंसी निकलती है। तो इन तीनों का एग्जाम एक साथ कराया जाता है, क्योंकि तीनों के जो पार्टिसिपेट करने वाले कंपटीटर होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो पार्टिसिपेंट एक ही होंगे, एटलीस्ट उनका लॉ बैकग्राउंड रहेगा।
तो इन सभी के लिए एक सिंगल एग्जाम कराया जाता है, और जब सिंगल एग्जाम कराया जाता है तो दिल्ली एबीपी के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस, प्लस कंपनी प्रोसिक्यूटर के लिए, प्लस एनआईए प्रोसिक्यूटर के लिए, प्लस ईडी प्रोसिक्यूटर, इन सब के लिए एक साथ एग्जाम करा दिया जाता है। तो सारी चीजों को सिलेबस में रखा है। जैसे दिल्ली एबीपी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको सीबीसी एक्ट आता हो, ये क्या नाम है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आता हो। तो उसके साथ ईडी है, तो ईडी के लिए स्पेशल जो लॉज है, जैसे कि सीबीसी एक्ट है, ये क्या नाम है, एक आता है फेरा फेमा एक्ट है, बैंक्रप्सी बोर्ड कोड है। तो ये सारी चीजें एक साथ सिलेबस में जोड़ दिया जाता है, और उन सबके लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करा दिया जाता है। Okay. और उस कॉमन एग्जाम के बेस पे सारे पोस्ट के लिए अलग अलग मेरिट होती है, और उसके अकॉर्डिंग फिर इंटरव्यू कराया जाता है, और आफ्टर इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन होता है। ओके तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपने ये फर्स्ट ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्वालिफाई किया अपने पहले प्रयास में, लेकिन सर बात करते हैं असफलता से सफलता की ओर चलते हैं। ये जो असफलता से सफलता की ओर का जो आपका सफर है, ये मैंने मतलब देखा है, हैव गॉन थ्रू ऑल योर डिटेल्स यू हैव सेंट मी, एंड व्हाट just what I have seen that you have cleared a number of examination, also appear in the interview session, in the number of examination which you have attempt. तो ये जो 7-8 एग्जाम और आपने क्वालिफाई किए, और का आपने मेंस लिखा, और इंटरव्यू तक आप वहां पर गए, फिर वहां से आपको असफलता हाथ लगी, और उसके बाद फिर पहले प्रयास में फिर आपने ये एग्जाम दिया 2019 की नोटिफिकेशन, और पहले प्रयास में आपने निकाल लिया। तो ये जो असफलता से सफलता की ये जो सफर है, आप इसको मतलब शेयर कीजिए स्टूडेंट के लिए, काफी इंस्पायर करेगा और अदर कैंडिडेट्स को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये इस पोस्ट के लिए मेरा पहला एग्जाम था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता पा लिया। इस पोस्ट के लिए पहली बार मैंने एग्जाम दिया और मैं सफलता पाया हूँ, लेकिन इसके पहले मैं बहुत संघर्ष झेला हूँ। और इन द ईयर 2014 आई हैव कंप्लीटेड माय एलएलबी, देन आफ्टर आई गॉन फॉर द प्रिपरेशन, एंड देन आफ्टर माय फर्स्ट एग्जाम इज यूपी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर 2015, in which I qualified my prelims, qualified mains, but unfortunately I cannot qualify my interview, and final selection was not came to my hand. So first time जब मैंने इंटरव्यू दिया उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। Then after I appeared in 2016 UP Judiciary Examination, and also 2016 UP Judiciary Examination I reached till the interview, but I defeated. मैं ये बता रहा था कि 2015 UP APO, 2016 यूपी जुडिशरी, ये दो इंटरव्यूज मैं बहुत रिसेंटली जब मैं प्रिपरेशन में आया तो जल्दी ही मैं पा गया, लेकिन इनमें मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ। उसके बाद बीच में 2 साल का गैप रहा। उन 2016-17 से 18 के बीच में कोई वैकेंसी नहीं थी। फिर 2018 में वैकेंसीज आई, यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, झारखंड जुडिशरी, और इन 3 वैकेंसीज में कंटिन्यूअसली हमने तीनों में इंटरव्यू दिया, बट अनफॉर्चुनेटली तीनों मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट एक अंदर से ये फीलिंग जरूर रही हमेशा कि हम जो कर रहे हैं हम सही दिशा में जा रहे हैं, और जब आपको अपने ऊपर ये बिलीव हो कि हम सही दिशा में जा रहे हैं तो आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपना 100% एफर्ट लगाते रहेंगे, तो जहां आपको जाना है निश्चित रूप से आप पहुंच जाएंगे। एक न एक दिन सफलता तो मिलनी है, बस जरूरत इस चीज की है कि आप कंटिन्यूअस फोकस करके आप अपने मार्ग पे सही दिशा में चलते रहें। से ये जो सफलता की ओर आप बढ़े हैं, तो इसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? आपने किस तरीके से तैयार किया? आप लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि इस एग्जाम के लिए जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है ओआरए का एग्जाम, इसकी तैयारी किस तरीके से करें आप, और कौन-कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए? देखिए, ये एग्जाम जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होता है, और इस एग्जाम के लिए बेटर अब ये होगा कि जितना मैक्सिमम हो सके वो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए, और बैरेक्ट्स को, जो हमारे लॉ के बैरेक्ट्स होते हैं उनको डीप स्टडी कीजिए। उनके जो भी उसका मार्जिनल नोट है उसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब आप जैसे यूथ कंपटीशन टाइप्स की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक आती है वो बहुत अच्छी बुक है, बहुत कारगर बुक है इसके लिए, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया रहता है,
पहले तो आपको क्वेश्चन के साथ उसका आंसर रहेगा, आंसर के नीचे एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ने से आपके जो भी डाउट्स रहते हैं उससे रिलेटेड वो टोटली क्लियर हो जाते हैं। तो आप जब एग्जाम में अपीयर होते हैं तो जिस क्वेश्चन को करने में आपको समय लगा के सोच करके 1 मिनट 1.5 मिनट का समय लगना है, वो आप 15 से 20 सेकंड में उसको कर ले जाएंगे। तो ये ऑफिशियल हो जाएगा इस एग्जाम के लिए। और ये एक ऐसा एग्जाम है जो 1 एग्जाम प्लस इंटरव्यू, कोई मेंस नहीं है इसमें, तो बहुत इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हैं अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करके पढ़ें। ओके, तो मतलब ये यूपीएससी जैसे और भी अदर एग्जाम करवाती है, यूपीएससी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस का जो पेपर होता है, ये इसका एग्जाम उस तरीके से नहीं है, कंडक्ट यूपीएससी के द्वारा ही कराया जाता है, लेकिन इसका एग्जामिनेशन पैटर्न एक सिंगल पेपर होता है। अलग, हाँ। ओके, तो ये आपने मतलब कुछ और आप सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट को इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए? हाँ जी। और सर मैं ये कह रहा था कि और कोई आप सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट को इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए? देखिए, हमारा सजेशन ये है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो आपको, तो सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वह आपकी पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम की तैयारी एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए टाइम तो लगता है। आप अगर सोचे कि मैं आज एग्जाम की तैयारी करने के लिए आया और विद इन 3 मंथ, विद इन 4 मंथ हमारी सफलता मिल जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल तभी होगा जब आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, और कंप्लीट प्रिपरेशन हमेशा टाइम मांगता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रिपरेशन ड्यूरिंग ग्रेजुएशन स्टार्ट कर रहे हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे सफलता ग्रेजुएशन से 6 महीने के अंदर मिल जाए। लेकिन आप ग्रेजुएशन के बाद ही सब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मुझे विद इन 6 मंथ मुझे सफलता मिल जाए। तो आपको सबसे बड़ी चीज होती है कि आप पहले धैर्य रखिए और कंटिन्यूअस आपकी स्टडी होनी चाहिए। आपकी स्टडी में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने 1 हफ्ते पढ़ाई कर लिया, 1 हफ्ते घूम लिया। दैट इज नॉट पॉसिबल अगर आप कंटिन्यूअस स्टडी नहीं कर रहे हैं तो। और बोला भी गया है, एक बहुत ही बढ़िया इंग्लिश में एक सेंटेंस है, एक कहावत बोली गई है, दैट ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स रिक्वायर्स टाइम। जितनी भी बड़ी ऑफ कोर्स मांगती हैं, तो आप लोगों, जितने भी कैंडिडेट, जितने भी व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, उन लोगों को फिर से मैं यही बोलूंगा कि जितने भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस लेकर के आता हूं, जिससे कि आप टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज, उनके नियम को फॉलो कीजिए कि किस तरीके से वो लोग तैयारी करके, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके उन लोगों ने एग्जाम प्रिपेयर किया। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा होता है कि किन्हीं बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो और बस कंटिन्यूअस, जैसे कि सर ने बताया कि हार नहीं मानना है, ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स रिक्वायर टाइम। और जी सर, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। देखिए, सफलता और असफलता ये आपके भाग्य पे निर्भर करती है, लेकिन आपका भाग्य तभी साथ देगा जब आप कंटिन्यूअस उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपकी असफलता के बाद आपके मस्तिष्क में कहीं से भी इतना सा भी ये विचार न आ सके कि अगर मैंने ये काम किया होता तो मुझे सफलता मिल गया होता। कहने का मतलब ये है कि सफलता के लिए मैक्सिमम जो एफर्ट हो सकता है वो हर एफर्ट यूज कीजिए आप, और हर एफर्ट लगाने के बाद भी यदि सफलता नहीं मिलती है तो पूरे जीवन आपको ये संतोष तो रहेगा कि मैंने अपनी सफलता के लिए संपूर्ण प्रयास कर लिया। जीवन में कभी इस बात का अफसोस न रह जाए कि मैंने ये किया होता तो सफलता मिला होता। नहीं, इसकी वैकेंसी हर साल नहीं आती है, लेकिन यूपीएससी से बहुत सारी ओआरए वैकेंसी आती रहती हैं और हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग वैकेंसी आती हैं। और कुछ तो वैकेंसी ऐसी आती हैं जिसमें सीधे इंटरव्यू होता है, एक भी एग्जाम नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। तो यूपीएससी की वेबसाइट को रेगुलर कंप्यूटर को देखते रहना चाहिए। उन कभी कभी आता है बीटेक वालों के लिए स्पेशल वैकेंसी आती है, कभी साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए स्पेशल वैकेंसी आती है, कभी लॉ के लिए स्पेशल वैकेंसी आती हैं, और उनमें से कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें सीधे आप इंटरव्यू क्रैक किए और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो गया।